See, ITSM. Okay, subject name is ITSM. IT stands for Information Technology. And SM means Service Management. That is, ITSM means Information Technology Service Management. Information technology, we all know what is information technology. But when we're talking about information technology, perspectives are different. Perspectives means if you talk about information technology in education field, okay, there will be different perspective as compared to the organizational field. Okay. If you're using information technology in a computer lab, okay, so we require computer, laptop, or you can say printer, okay, smart board. These are the requirements of information technology. Information technology, it is a broad word. You can say it includes people. The information technology requires people to operate. Operate करने के people चाहिए, right? Then we require infrastructure also. Okay, information technology will require infrastructure, then environment, some procedures, software, hardware, right? We take an example of computer system only. Okay, the computer system is an example of information technology. So it is a combination of people. The people requirement to operate it, people, infrastructure like lab environment and AC, okay, and technology. Okay, so information technology we can see it is a collection of hardware, software, people, infrastructure, and technology. Okay. Then see next service management. Okay, what is service management? The service management means a set of capabilities. Okay, a set of capabilities that is used to provide value to customers. Okay, set of capabilities that is used to provide value to customers. Means value to customers, to give value to customers, some capabilities are used. Some capabilities are used. Value to customers means to provide good quality product to customer. Value to customer का meaning क्या है? Providing good quality product to customer. If you are providing good quality product, that means what you are doing? You are giving value to customer. So whenever you will come across this point, on the point, giving value to customers, it means you are providing good quality product to the customer. Okay. So what is service management? Service management means some capabilities. Capabilities means skills, experience, that is capabilities, right? Skills, experience, budget, the capabilities में आएगा, right? Then experience हो गया, skills हो गया, budget हो गया, then research work, ये सब क्या capabilities है organization के, okay? So we will use capabilities to give value to customer, okay? And see service जो है, we all know service is an intangible asset, right? What is intangible asset? Service एक intangible product है. Service क्या is an intangible product. What is intangible? Any idea? That is not physical in nature. Intangible product means that is not physical in nature. For example, goodwill, patent, copyright. Okay, ये सब क्या है? Intangible है. A tangible product means क्या होता है? That exists physically in nature. That exists physically. वो होता है tangible. For example, building, classroom, ये सब क्या है? Tangible है. Okay. Intangible product service क्या है हमारे? Intangible product means does not exist physically in nature. फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया. ओके, अभी कोई पर्सन में गुड क्वालिटी है, तो वो गुड क्वालिटी क्या है? दैट इज इंटेंजिबल है कि टेंजिबल है? इंटेंजिबल है. ठीक है, मैं गुड क्वालिटी कुछ अपने पेपर पे लिख के बता नहीं सकती. ठीक है, वो मेरे में रिफ्लेक्ट हो गई मेरे एक्शन से, मेरे कम्युनिकेशन से, मेरे बिहेवियर से. ओके, तो सर्विस क्या है हमारा? एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट है. ओके, नाउ सी एक कीवर्ड है यहाँ पे सर. आवाज देखो क्यों हो रही है?
वॉइस इको हो रहा है ना? ठीक है। सी SLA सर्विस में कीवर्ड है SLA, दैट इज सर्विस लेवल एग्रीमेंट. सर्विस लेवल एग्रीमेंट. ओके. Service level agreement means agreement between IT service provider and a customer. What is SLA? Agreement between IT service provider and a customer. उनके बीच में जो एग्रीमेंट होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉलिसी, उनका वारंटी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो एग्रीमेंट बिटवीन, व्हाट इज SLA? एग्रीमेंट बिटवीन IT सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर. ओके. Like suppose you are taking house on rent, okay, so some type of affidavit you are making, तो क्या है वो? It is a type of SLA only ना. You can say it is SLA. जो प्रोवाइडर है और उन कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दोनों के बीच का एग्रीमेंट को बोलते हैं SLA. तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट के एग्रीमेंट बिटवीन IT सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड. Then see what SLA includes. SLA में क्या डिस्क्राइब होता है? डॉक्यूमेंट है. डॉक्यूमेंट कंटेन सम टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट? SLA में क्या डिस्क्राइब होता है? इट डिस्क्राइब्स टारगेट लेवल ऑफ सर्विस. टारगेट लेवल ऑफ सर्विस, ठीक है. व्हाट आर द टारगेट्स? मींस कितने मंथ का तुम्हारा ये सर्विस का ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है, टारगेट लेवल. देन उसका इट स्पेसिफाइज द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द IT सर्विस प्रोवाइडर. फर्स्ट तो सी IT जो तुम्हारा SLA डॉक्यूमेंट है, सर्विस लेवल टारगेट रहेगा उसमें. देन रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द IT सर्विस प्रोवाइडर, मीन जैसे कुछ डैमेज हो गया तो व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द IT सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है. रिस्पांसिबिलिटी मींस वारंटी, गारंटी, ये किसका रिस्पांसिबिलिटी है? IT सर्विस प्रोवाइडर की है. SLA इंक्लूड्स responsibility of the IT service provider. Okay. And the customer का भी कुछ responsibility रहेगा. कस्टमर डैमेज ही करता रहेगा सब कुछ. Okay. Responsibilities of IT service provider and customer, दोनों की responsibility इसमें डॉक्यूमेंट रहेगा in SLA, service level agreement. Okay. तो see ITSM में ये सब्जेक्ट नेम इज ITSM only. Information Technology Service Management. So how you can define ITSM? हम लोग ये बोल सकते हैं ITSM क्या है, क्या फोकस रहेगा सब्जेक्ट में हमारा? टू प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर. पूरे सब्जेक्ट में फोकस ये रहेगा टू प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. पूरा तुम्हारा यूनिट 5 में इसी पे बात होगी. हाउ टू प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर, हाउ टू गिव गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू कस्टमर. Okay, what is utility, what is warranty, what is guarantee. Okay. Then what are the life cycle of service? They say, for example, you are making project for the 6th semester, right? So now you are at which phase of the service ही ready कर रहे हैं ना. You are making website or app. You are क्या means क्या, you are preparing some type of service only. So you are at which phase now? कौन से phase में हो? स्ट्रेटेजी के फेज में हो, या डिजाइन के फेज में हो, या ऑपरेशन हो के फेज में हो, या इम्प्लीमेंटेशन के फेज में हो सकते हो. तो यू आर एट कौन से फेज में हो? डिजाइन के फेज में, फॉर एग्जांपल. ओके. तो नाउ सी नेक्स्ट हमारा टर्म है सर्विस. ठीक है, सर्विस. तो यू कैन से सर्विस क्या है ये? इट इज एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट. इट इज इंटेंजिबल प्रोडक्ट. ठीक है, टू गिव वैल्यू टू द कस्टमर, टू गिव वैल्यू टू द कस्टमर. ओके. So we can say that IT service जो है, it is a combination of different components, right? Different components, for example, IT जो है हमारा सर्विस जो है, it is a combination of different components. Components means अगर तुमको सर्विस प्रोवाइड करना है कस्टमर को, तो what are the requirements? Basic requirements क्या होगा? People, same thing, people, hardware,
सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, ये है ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू गिव सर्विस टू कस्टमर. ओके. See, services जो है, services provided by an IT team. As मतलब there are different areas where we can provide, where we can give the IT service to the customer. Different areas है, multiple infinite होंगे, मैं count करने गए तो, but कुछ list down यहाँ पे किया है. Different domains we are providing, where we are providing IT services to the customer. मतलब different areas जहाँ पे हम लोग IT service दे रहे हैं customers को. For example, BI, वह subject भी था ना, BI, business intelligence. Okay. Then data warehousing, QA testing, ठीक है, माइग्रेशन एंड री इंजीनियरिंग. ठीक है, तो BI में डेटा वेयर हाउसिंग, CBI पता चलेगा क्या सब्जेक्ट में. डेटा वेयर हाउसिंग मीन्स, डेटा वेयर हाउस मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटा वेयर हाउसिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा. ओके. QA टेस्टिंग होगा तुम्हारा क्वेश्चन आंसर. QA, माइग्रेशन और री इंजीनियरिंग. जैसे अभी तुम्हारे सॉफ्टवेयर में तुम री इंजीनियरिंग का वर्क कर सकते हो स्टार्टिंग से. इफ देयर आर मिस्टेक्स इन योर कोड और प्रोग्रामिंग, तो तुम क्या करोगे, इनिशियल फेज से स्टार्ट करोगे री इंजीनियरिंग. डिफरेंट एरियाज है, यहाँ पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं और सिर्फ 4 है, बट डिफरेंट डोमेन से. ओके, IT सर्विसेज के. तो व्हाट इज SLA? SLA क्या है? Service level agreement. Online students write in the chat box. It is an agreement between whom? किस किस के बीच में एग्रीमेंट है SLA? See, now next, write in the chat box, huh? What is SLA? See, business process. Okay, how you can define business process? कोई भी business process, for example, transaction. Online transaction तुम करो, it is a type of process only ना. Online transaction. Then if you are going to buy anything physically also, तो क्या it is a type of process only. Process ही है ना. Then if you are taking admission, some type of process is there. तो process क्या है? If you want to take admission, तो कुछ process होगा. Process means set of activities, right? Process means a set of activities to complete the task. To complete the task, a set of activities to complete the task. Okay. So we can say that business process क्या है? Series of steps that is performed by the stakeholder. Okay, that is performed by the stakeholder to achieve a goal. तो गोल को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज को हम लोग क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं, राइट? बिजनेस प्रोसेस क्या है? सेट ऑफ एक्टिविटीज और सेट ऑफ स्टेप्स परफॉर्म बाय द स्टेक होल्डर्स टू अचीव गोल. ओके. For example, see, let's take an example. In an organization, suppose 10 teams को 10 members को I'm assigning which type of work? Complete the design work. Complete the design work. Okay. तो ये assign किसको हुआ? 10 members को. For example, तो ये 10 members को मैंने डिजाइन का वर्क दिया और 10 members जो है बाकी अनदर, वो लोग क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग करेंगे. ठीक है. और 10 जो वो क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे. ओके. और 10 जो है वो क्या करेंगे? टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके. तो इसमें क्या होता है? सी, ईच स्टेप इन बिजनेस प्रोसेस का हर एक स्टेप होता है. जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजी, देन डिजाइन, देन तुम्हारा यू कैन से डिजाइन के बाद प्रोग्रामिंग बोल सकते हो. ठीक है. प्रोग्रामिंग के बाद टेस्टिंग ले लो. टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंट ले लो. इम्प्लीमेंटेशन के बाद डिप्लॉयमेंट मीन्स नाउ यू आर गोइंग टू हैंडल द सर्विस टू द कस्टमर. ओके. ये फेजेस है कुछ. ये फेजेस होने के बाद क्या होगा? यू कैन से दैट प्रोसेस इज कंप्लीट नाउ.
हो सकता है ना प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो वी कैन से दैट ईच स्टेप इन अ बिजनेस प्रोसेस, फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजी, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग, ये सब जो है, we can say that each step in a business process denotes a task that is assigned to the participant। each step जो है in a business process क्या है, denotes a task that is assigned to a participant। okay, now see this figure। दिख रहा है थोड़ा, हाँ देखो। सी बिजनेस प्रोसेस जो है, मैनेजमेंट, पीपल, नॉलेज, यहाँ पे है लेट मूव हो रहा है, इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या है, कुछ स्टेप से, सीरीज ऑफ स्टेप से टू कंप्लीट आउट दी, टू कंप्लीट दी टास्क, टू कंप्लीट दी टास्क, टास्क कंप्लीट करने के कुछ स्टेप्स यूज करेंगे ना, राइट। तो मैनेजमेंट, पीपल, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। तुम इसमें और दो तीन ऐड कर सकते हो अपने माइंड से, बट ये बेसिक यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है बस। मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होगा जो पूरा मैनेज करेगा, टू टेक द डिसीजन, टू कोऑर्डिनेट विद द मेंबर्स, राइट। देन पीपल का रिक्वायरमेंट होगा जो भी एम्प्लॉय है, ओके। देन नॉलेज इज द रिक्वायरमेंट, information होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू मेक एनी वेबसाइट, information first we have to gather the information from inside the organization, from outside the organization also। inside the organization means how many employees are there, उनके skills क्या है, उनके experience क्या है, whether they are capable to complete the task or not। okay, outside the organization latest technology क्या है, मार्केट का लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इंफॉर्मेशन बेसिक है, कोई भी टास्क कंप्लीट करेंगे, इंफॉर्मेशन इज अ बेसिक थिंग, राइट। एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं, एप्लीकेशन मींस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज द रिक्वायरमेंट टू डिलीवर आईटी सर्विस, राइट। बिकॉज इन दिस सब्जेक्ट वी आर फोकसिंग ओनली आईटी सर्विस ओनली। कौन सी सर्विस पे, आईटी सर्विस पे। तो टेक्नोलॉजी इज द रिक्वायरमेंट मींस एप्लीकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होगा ना, लाइक प्रिंटर हो गया, तुम्हारा कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है। ओके, देन ऑनलाइन फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ही रिक्वायरमेंट है। डेटाबेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो बिजनेस प्रोसेस के ये कुछ क्या है, कंपोनेंट्स है, मैनेजमेंट, पीपल, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, now see very important concept, it is agency principle क्या होता है। okay, what is agency principle? सी एजेंसी प्रिंसिपल में दो कंपोनेंट है, एक है एजेंट और एक है प्रिंसिपल। इसके दो मेन एंटिटीज है, कौन सा, एक एजेंट है और दूसरा क्या है, प्रिंसिपल। वर्ड इटसेल्फ इज डिस्क्राइबिंग दैट देयर आर टू कंपोनेंट्स एजेंसी प्रिंसिपल में, एजेंट और प्रिंसिपल। ठीक है, एजेंट का मीनिंग होता है एंटिटीज, एजेंट का मीनिंग क्या होता है, एंटिटीज। प्रिंसिपल का मीनिंग होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, तो मींस एंटिटीज क्या करे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे। तो एजेंसी प्रिंसिपल वी हैव टू सी। ओके, तो टू मेन एंटिटीज याद रखो, कौन से, व्हाट आर टू मेन एंटिटीज, एजेंट एंड प्रिंसिपल। ओके, सी, तो एजेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है, एजेंट कैन बी एम्प्लॉइज। Let's take example of agent. Agent means entities. Okay. एजेंट क्या हो सकता है, इट कैन बी एम्प्लॉइज, कंसल्टेंट हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं और एडवाइजर्स, ये एजेंट हो सकते हैं। एंटिटीज, एजेंट मींस एंटिटीज, एंटिटीज समझ में आता है ना, जैसे स्टूडेंट क्या है,
एंटिटी, जैसे जो भी एंटिटी होता है उसके पास कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे अभी स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? स्टूडेंट एग्जांपल ऑफ एंटिटी है, तो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट एंटिटी? एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट एंटिटी, स्टूडेंट एक एंटिटी है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है दैट इज हैविंग सम एट्रीब्यूट लाइक आईडी, रोल नंबर। स्टूडेंट आ गया ना, तो आईडी रोल नंबर ही आएगा, ठीक है, होम से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा। तो रोल नंबर हो गया, देन उनका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, ठीक है, या फिर उनका मार्क्स हो गया, ये सब है ना, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट एंटिटी। ओके, 10 मिनट्स बाकी है, जल्दी 40 मिनट्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो एंटिटीज का एग्जांपल यहाँ पे क्या क्या दिया है? एंटिटीज कैन बी, और यू कैन से एजेंट, एजेंट कैन बी एम्प्लॉइज, कंसल्टेंट, सर्विस प्रोवाइडर, एडवाइजर। ओके, अब प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स रिसोर्सेस, प्रिंसिपल में आएगा रिसोर्सेस, कंस्ट्रेंट, रिसोर्सेस, कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव, फंड्स, ठीक है, ये सब क्या है? प्रिंसिपल। कौन से है? फंड्स, फंड्स, रिसोर्सेस, कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव, ये क्या है? प्रिंसिपल है। क्योंकि एजेंट जो है, जो हमारा, वो क्या कर रहा है? प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है। जैसे एजेंट मेरा है कंसल्टेंट, तो कंसल्टेंट का कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कंसल्टेंट, जो कंसल्टेंट है उसके पास कुछ कंस्ट्रेंट रहेगा, रिस्ट्रिक्शंस मींस जो कंसल्टेंट है उसके पास कुछ फंड्स दिए होंगे, कितने में ही तुमको काम करना है, बजट, ये फंड से तुम्हारे पास बैलेंस। ओके, तो एजेंट याद रखो, एजेंट मतलब एंटिटीज के एग्जांपल, एम्प्लॉइज, कंसल्टेंट, एडवाइजर्स, सर्विस प्रोवाइडर। ओके, अब प्रिंसिपल क्या है? ऑब्जेक्टिव है, कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ एम तो रहेगा ना एंटिटी का। अभी स्टूडेंट एंटिटी है, उसका एम क्या है स्टूडेंट का? कुछ तो तुम्हारा भी ऑब्जेक्टिव होगा कि नहीं? अभी अपने माइंड में सेट कर लो, व्हाई यू आर कमिंग टू कॉलेज। ओके, वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। तो प्रिंसिपल में ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेस, कंस्ट्रेंट्स और फंड्स। तो वी कैन से दैट एजेंट एक्ट अपॉन द प्रिंसिपल ओनली। समझ रहे लाइन? एजेंट जो है एक्ट अपॉन द प्रिंसिपल ओनली, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ओनली एजेंट एक्ट करता है। जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी एडवाइजर है, वो अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही चलेगा, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, मतलब अपने कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग, अपने फंड्स के अकॉर्डिंग, अपने रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग, राइट? ओके, अभी जो एजेंट है, एजेंट को, एजेंट जो एक्ट करता है, एक्ट मतलब, एक्ट का मतलब क्या है? जो भी परफॉर्म करता है एजेंट। ओके, अभी एम्प्लॉय भी एक एजेंट ही है, एम्प्लॉय भी एक एजेंट ही है ना, राइट? एजेंट जो भी एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ओनली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ओनली। तो वी कैन से दैट एजेंट को हमेशा मोटिवेटेड होना चाहिए, एजेंट को हमेशा क्या होना चाहिए? मोटिवेटेड होना चाहिए, राइट? होना चाहिए कि नहीं? तो एजेंट को क्या मिलना चाहिए? कंपनसेशन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? हाँ, कंपनसेशन मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड मिलना चाहिए टू कीप सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? अदरवाइज दे विल फील बोर। ओके, फिर क्या होगा? दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हमेशा क्या होना चाहिए उनको? कॉम्पनसेट, जो भी कंपनसेशन देना चाहिए और रिवॉर्ड देना चाहिए और मोटिवेट करते रहना चाहिए। ओके, ये एग्जाम में आ सकता है, एजेंट को क्या करना चाहिए मोटिवेट रखने के लिए। ओके, तो कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड, ओके, टू कीप मोटिवेटेड। अभी सी, अगर हम लोग सर्विस मैनेजमेंट के बारे में बात करें एजेंट के अंदर, इसके बारे में, हाँ, हाँ, विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्विस मैनेजमेंट, सी,
जो कस्टमर्स है वो हमारे प्रिंसिपल्स है। थोड़ा ध्यान से समझो, अगर हम लोग सर्विस मैनेजमेंट के अंदर चले जाते हैं, सर्विस मैनेजमेंट मीन्स व्हाट इज सर्विस मैनेजमेंट? दिखाई दे रहा है तुम लोग को? ठीक है, मूव क्यों होता है तेरे लिए? See, within the context of service management means to provide value to customer. Okay, तो मीन्स अगर मुझे कस्टमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना है तो क्या होगा, एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर होगा, एक कस्टमर होगा, दो ही पीपल इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे पीपल है और मेन 2 एंटिटीज है। तो कस्टमर्स मेरे प्रिंसिपल्स है। कस्टमर्स क्या है? मेरे प्रिंसिपल्स है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स मेरे प्रिंसिपल्स से मीन्स मैं कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली काम कर रही हूँ। कस्टमर्स मेरे क्या बन जाएंगे? प्रिंसिपल्स बन जाएंगे। बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं? कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली वी आर वर्किंग। ठीक है, एजेंट कौन बन जाएगा? जितने भी पीपल इन्वॉल्व है कस्टमर को सर्विस देने के लिए, दे विल बिकम द एजेंट। तो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्विस मैनेजमेंट, कस्टमर्स क्या है? मेरे प्रिंसिपल से। और एजेंट क्या है? दैट इज वर्किंग फॉर देम। एजेंट दैट इज वर्किंग फॉर देम। ओके, तो सर्विस प्रोवाइडर क्या है? तुम्हारे एजेंट। सर्विस प्रोवाइडर क्या है? एजेंट। ओके, तो व्हाट इज सर्विस एजेंट? अगर तुमको डिफाइन करना है व्हाट इज सर्विस एजेंट, कैसे डिफाइन कर सकते हो? सर्विस एजेंट का हम देखिए एग्जांपल, कंसल्टेंट है, बहुत सारे एग्जांपल है, एडवाइजर है, देन सप्लायर हो जाएगा, मैनेजर है, ये सब क्या है? एजेंट है। ओके, तो वी कैन से दैट सर्विस एजेंट क्या है? एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। सर्विस एजेंट जो है आर टिपिकली द एम्प्लॉय ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। सी, जब हम लोग सर्विस देते हैं कस्टमर को तो एम्प्लॉयज काम करते हैं सर्विस देने के लिए। तो सर्विस एजेंट को हम लोग क्या बोले? आर टिपिकली द एम्प्लॉयज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। व्हाट इज सर्विस एजेंट? दे आर टिपिकली द एम्प्लॉयज ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके वो एम्प्लॉय, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर दैट सर्विस। ओके, तो सर्विस एजेंट आर टिपिकली द एम्प्लॉयज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। बट ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयज ही सर्विस एजेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। सर्विस एजेंट हमारा कुछ भी हो सकता है। सिस्टम भी कभी कभी सर्विस एजेंट का काम कर सकता है। सिस्टम भी जो है वो एजेंट की तरह ही काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑटोमेटिक वर्क होगा, प्रिंट निकालना, वो भी क्या हुआ? एजेंट हुआ। डोंट कंफ्यूज नहीं करेंगे इतना, एजेंट याद रखो एंटिटीज है, प्रिंसिपल्स मींस ऑब्जेक्टिव्स, constraints, funds, resources, इतना याद रखो। ओके, एंड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्विस मैनेजमेंट क्या है? विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्विस मैनेजमेंट क्या पॉइंट आओ? कस्टमर्स तुम्हारे प्रिंसिपल्स, एजेंट क्या है? दैट इज वर्किंग फॉर देम। तो एजेंट क्या हो गया? हमारे एम्प्लॉय हो गए। राइट, इतना क्लियर है सबको? इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। अबे जेरोल्ड, कृतिका, रोहित, शहजाद, किसी का चैट बॉक्स में आंसर नहीं आया। व्हाट इज एसएलए? व्हाट इज एसएलए? Lie between 0 and 1. So PT should be always, less than 1 and greater than 0. अगर ये less than 0 होता है तो 0 से कम है तो ये आउटसाइड आएगा। Understood? क्या 1 से ज्यादा है जो भी? Are you all there? Okay, now give attendance. अबे write yes, huh? Otherwise I will mark absent. अबे only 2 times I will call, huh? अबे absent है। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? कृतिका। Yes, ma'am.
अबे सो रहा है आज, देखो तुम लोग भी देखो ऑफलाइन स्टूडेंट्स। कृतिका, आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ ठीक है। कीर्ति, कीर्ति है, चैट बॉक्स में है। जेरोल्ड, Yes, ma'am. हाँ। रोहित,